A very good afternoon, everyone. I welcome you back in the e-learning program organized by Sri Vidyadesh Vidya Sankul under the guidance of Dr. G.M. Sutaria sir. This is our 7th lecture of subject CC and SP. In the previous classes, we have completed our chapter number 1, that is issue of shares, of part 2, that is secretarial practice. Alright, so I just hope that you all must have completed your fair book work of chapter number 1 and you all must have submitted that also. So soon I am going to check your homework also that you have already emailed us. So make sure those who have still not completed, make sure that before you end the video, you just send me your fair book work of lesson number 1. Alright, so let's move ahead. We'll start with chapter 2, that is transfer and transmission of shares. These two words, transfer and transmission, look so similar in our general language, right? Transfer and transmission. But in case of shares, it is very different in terms of legality, in terms of transferability of the shares. So before we start the chapter, let me just brief you about the ownership of the company. Ownership of any business, I would say. See, when it used to be like sole proprietorship jab chalta tha, right? Abhi bhi chalta hai, of course, when a single person wishes to start his business, his or her business, right? They can run their business and they can get themselves registered as a sole proprietorship. All right, and their shares and their work will be done by them itself, right? And the whole responsibility would be to that person, and if that person is dying or the person decides to retire, the firm needs to be formed again if somebody else want to run the same business. Suppose the father is running a business and suppose father dies in between, so the business can be continued by the son, but the firm is to be registered again. Then to overcome such limitation that एक person कितना काम कर पाएगा या कितना अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाएगा, राइट? तो उस चक्कर में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म. अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होने लगा, इफ सपोज अ पार्टनर इज बीइंग न्यू पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड, नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं, या एग्जिस्टिंग पार्टनर में से किसी की डेथ हो जाती है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर इज़ डिसाइडिंग कि मुझे अभी ये फर्म में रहना नहीं है, या वो पर्सन इज़ गेटिंग रिटायर्ड, ओके, तो पूरा जो पार्टनरशिप फर्म होता है दैट इज़ टू बी चेंज्ड. And to change the partnership firm, it is a very long and very complex procedure. It's not that easy, and you all are going to learn about this in your accounts also. Accounts में तुम्हारा चैप्टर आएगा which is called admission of the partner and retirement of the partner. Okay, so you will see how difficult these sums are. तो अगर हमको एक सम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो जब एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती होंगी तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड नो टू फॉर्म द होल बिजनेस अगेन. सो बिज़नेस करने से ज़्यादा तो उसको मैनेज करने में टाइम ज़्यादा जा रहा था. तो वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया विच इज़ कॉल्ड कंपनी. तो कंपनी के केस में क्या आया कि कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है और वो शेयर होल्डर्स होंगे वो ऑनर्स होंगे. पर अभी इसकी जो बेस्ट चीज़ क्या होती है कि ये शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, एंड दैट ट्रांसफ़र वॉन्ट अफेक्ट एनीवेयर इन द बिजनेस. Suppose if I have shares of any company and I'm selling those shares to somebody else, मैं किसी और को ये शेयर्स बेच देती हूँ, तो उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू ही रहेगा, चाहे उसके मेंबर्स, उसके शेयर होल्डर्स आए या जाए, या किसी का डेथ हो, किसी को
नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं या कोई पुराने शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उनकी डेथ हो रही है या इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पर वो कंपनी को कुछ भी अफेक्ट करेगा नहीं। सो इसीलिए जो बिजनेस जो होता है वो रन करता रहता है, रादर देन सो बीइंग इनटू सच सच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, द मोर फोकस इज बीइंग डन टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। All right, so on that base this chapter is being organized for you, so let's read it from the introduction. Okay, the partnership firm came into existence due to limitation of sole proprietorship and limitation of partnership firm gave birth to company formation. Partnership firm came into existence due to limitation of sole proprietorship and limitation of partnership firm have given birth to कंपनी फॉर्मेशन। ओके, जब उनको प्रॉब्लम लगा कि चलो प्रोप्राइटरशिप में प्रॉब्लम है तो पार्टनरशिप का कंसेप्ट लाए। पार्टनरशिप का कंसेप्ट बहुत टाइम तक चला, फिर रियलाइज़ हुआ यार ये तो और प्रॉब्लम है कि इसमें और प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो इसीलिए कंपनी का फॉर्म हुआ। When partners separate in partnership firm, the procedure is long and complex. अगर partners separate हो जाते हैं ना एक दूसरे से तो उसकी procedure is very long and it's very complex. In a company, no such procedure is required. पर अगर कंपनी के केस में अगर पार्टनर को मतलब ऑनर को ऐसा है कि मुझे सेपरेट हो जाना है, मतलब मुझे अब ये कंपनी के शेयर नहीं चाहिए, तो इज़ फील फ्री, राइट। वो कभी भी कैसे अपनी कोई चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं, इट्स वेरी इजीली लाइक एनी अदर प्रोडक्ट, यू कैन बाय एंड सेल द शेयर्स। सो इन अ पब्लिक कंपनी इफ द शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर्स हिज ऑनरशिप एंड्स। जैसे ही वो अपने शेयर्स को बेचता है तो उसकी ऑनरशिप ख़त्म हो जाती है। शेयर्स कैन बी फ्रीली सोल्ड और परचेज जस्ट लाइक एनी प्रोडक्ट। जैसे कैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो वैसे एनी प्रोडक्ट यू कैन बाय इट एंड सेल इट वेरी फ्रीली। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। ये सबसे एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सा कैरेक्टरिस्टिक है बीइंग अ company, because that's what makes the work very easy, that's what makes the member feel free. All right, not only that, if a person wants to purchase the shares of the same company again, he can purchase the shares and he can be owner of that portion. मतलब सपोज कि एक बार मैंने वो कंपनी के शेयर्स बेच दिए तो it doesn't matter, you can buy such shares again. There's no problem, you can easily buy those shares again from the company, okay, and you can be owner of such portion which you have brought. This right is absolute right which cannot be prohibited by company. ये absolute right है और ये right आपसे कोई भी ले सकता नहीं है, कंपनी भी आपको ये right को यूटिलाइज करने से रोक पाती नहीं है। A shareholder can voluntarily transfer his shares as per provision of Companies Act. वो खुद के मन से अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है as per the provision of the Companies Act. Moreover, when shares are compulsorily transferred by operation of law, then such transfer of share is called transmission of the shares. In this chapter we will learn about share transfer and transmission. अभी देखो ये दो वर्ड्स का ना डिफरेंस जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको केयरफुली सुनना। See, when a company, okay, when any shareholder, okay, वो अपने voluntarily, okay, if the shareholder voluntarily ट्रांसफ़र करता है अपने शेयर, ओके, मेरा अब सपोज मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं अपने मन से कि मुझे ऐसा है कि अभी मैं ये शेयर्स रखना नहीं चाहती, आई वॉन्ट टू सेल दीज शेयर्स, तो वॉलेंटरीली अगर मैं ट्रांसफ़र करती हूँ किसी को, सेल करती हूँ अपने शेयर, तो वो होगा ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर। जब वर्ड आए वॉलेंटरीली तब आता है ट्रांसफ़र वर्ड, बट व्हेन कंपल्सरीली ट्रांसफ़र करने पड़े शेयर्स को, ओके, व्हेन द शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड कंपल्सरीली, ओके,
बाय व्हाट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अभी ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जहाँ ऑपरेशन ऑफ लॉ लगता है? तो व्हेन इट कम्स टू सपोज अ पर्सन इज हैविंग शेयर, सपोज मेरे पास शेयर्स हैं एंड आई गॉट डाइड, ओके, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो वो शेयर्स ऑब्वियसली ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे क्योंकि आई एम नो मोर अ पर्सन नाउ, ओके। अभी मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसके नाम पे शेयर्स नहीं हो सकते, तो जो मेरा नॉमिनी होगा, ओके, कि जिसके ऊपर मेरी प्रॉपर्टीज़ जा रही है, तो वो ये सारे शेयर्स जो होंगे वो भी उसके पास चले जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट ऑपरेशन ऑफ लॉ। मैंने मेरी मर्जी से नहीं किया, बट इट इज़ कंपल्सरीली नाउ इट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड। तो इन सच केसेस ये तुमको आएंगे कंडीशंस के ये कौन सी कंडीशन में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हो जाता है, कंपल्सरी होना चाहता है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस का पूरा एक टॉपिक है दैट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। सो जब वॉलंटरीली खुद के मन से जब होता है ट्रांसफ़र तो उसको बोलते हैं शेयर ट्रांसफ़र। एंड व्हेन इट कम्स टू कंपल्सरी बाय द एक्शन ऑफ लॉ तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स। ओके, सो लेट्स हियर इट वन बाय वन। पहले हम लोग ट्रांसफ़र से स्टार्ट करेंगे, विच मीन्स वॉलंटरीली वो ट्रांसफ़र ले रहा है, शेयर्स का सेल करने जा रहा है। सो दैट इज ट्रांसफ़र। लेट्स रीड इट। सो मीनिंग ऑफ शेयर ट्रांसफ़र. So in a general sense, share transfer is an act in which shareholders voluntarily sell his shares to another, waiving his right to ownership and transferring the title of shares in the name of others. As the name suggests that share transfer, right, कि शेयर का ट्रांसफ़र हो रहा है, simply that only एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो शेयर का ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। Here the very important word is voluntarily sells these shares. मतलब there is no such forceful impact on the shareholder that you have to sell the shares. No, it's not like that. But the shareholder willingly, voluntarily वो शेयर कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है, मतलब कि वो खुद से willing है to share such to sell his shares. Okay, so he is willing to share his entitlement, his rights. He is waiving his right and right to ownership, and he is transferring such ownership to the person to other person. All right, let's see the definition. When जब डेफिनेशन आए तो मेक श्योर वर्ड्स वही के वही लिखना, और एक मार्क में आ सकती है डेफिनेशन। व्हेन अ शेयर होल्डर in anticipation of approval by company voluntarily waives his title, that is ownership right of shares, in favor of other person or persons, when there is a transfer of title to the shares, it is called transfer of shares. Okay, when you read it, it is little complicated, but it is actually not. So when a shareholder, okay, जब कोई shareholder है in anticipation of approval by company, कि जब वो चाहता है, खुद से expect कर रहा है कि उसको he is expecting to sell his share to somebody else, okay, in anticipation of approval of by the company, voluntarily, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इसका वर्ड है वॉलंटरीली। ये तो तुम्हारी जब भी तुम शेयर ट्रांसफ़र के बारे में लिख रहे हो तो ये वर्ड तो आना ही चाहिए। वॉलंटरीली वेव ही इज टाइटल, दैट इज ऑनरशिप राइट, वो वेव कर रहा है ऑफ शेयर्स इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, एक या एक से ज़्यादा लोगों को। सपोज मेरे पास 50 शेयर्स है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे शेयर एक ही पर्सन को बेच रहा हूँ, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ दैट 50 शेयर्स आई हैव, 20 आई एम कीपिंग इट, 50 इन और 20 आई एम शेयरिंग इट विद समबडी एल्स, 10 आई एम सेलिंग इट विद समबडी एल्स। सो दैट कैन बी डन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सो व्हेन आई डिसाइड टू शेयर my ownership rights in favor of one person or another or persons, and when there is a transfer of this title, that is ownership transfer हो रही है to of the shares, it is called share transfer. So it is nothing but voluntarily शेयर बेचे जा रहे हैं, ना कि कोई उनको फोर्स कर रहा है, ना कोई कंपल्सरी नहीं है उनके लिए, बट वो खुद की विल से सेल करना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर ट्रांसफ़र। When a shareholder sells his shares to other or waives his right
then his ownership or membership is over, and a person who purchased और जो परचेस कर रहा है ऑब्टेन्स द मेंबरशिप और ऑनरशिप. सो ऑब्वियसली बात है, जो सेल करेगा उसकी ऑनरशिप चली जाएगी. ओके, व्हेन अ शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर टू अदर और वेव्स हिज राइट्स, देन हीज ऑनरशिप और मेंबरशिप इज़ ओवर. ऑब्वियसली उसने शेयर बेच दिया है तो उसकी ऑनरशिप और मेंबरशिप भी चली जाती है. एंड द पर्सन हु हैज़ परचेस्ड, जो परचेस कर रहा है, ये ऑब्टेन्स द मेंबरशिप एंड द ऑनरशिप. Here, one thing should be noted that the procedure is treated to be completed only when the transfer is approved by the company. कब हो सकता है? जब कंपनी वो ट्रांसफ़र अप्रूव करती है. तो यहाँ पे लिखा है इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय द कंपनी. उसकी डेफिनेशन में भी ये वर्ड ऐड किया गया है कि अगर कंपनी उसको अप्रूव करती है तो एक्सपेक्ट करते तब हम उसके कंपनी के पास जाते हैं कि वी विश टू ट्रांसफ़र. अंडरस्टूड? So this is what share transfer is. Then what is the importance? Why should we go for share transfer? कैसे हमको important है वो? So let's read it. Share transfer is an important procedure. Shareholder use their rights to transfer the share with consent of the company. Okay, share transfer is an important procedure, of course, because shareholder uses the right to transfer shares with consent of company. वो यूटिलाइज कब होगा ये राइट? जब आप कंपनी से परमिशन लोगे तब. शेयर इज पार्ट ऑफ अ कैपिटल ऑफ द कंपनी. इट इज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर. ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है शेयर होल्डर का. अगर कंपनी ग्रो करी है तो उनके शेयर्स के भाव बढ़ते हैं, उनको प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट मिलता है. सो ये फाइनेंशियल एक इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स का कंपनी में. इट इज़ मूवेबल एसेट. तुमने 11th स्टैंडर्ड में असेट्स पढ़ी थी जिसमें मूवेबल एंड इमूवेबल असेट्स थी. तो द असेट्स विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज मूवेबल. जैसे शेयर्स आर मूवेबल असेट्स, एक प्लेस से दूसरी जगह इजीली यू कैन ट्रांसफर इट, राइट? सो इट्स अ मूवेबल असेट फॉर शेयर होल्डर्स, राइट? शेयर होल्डर्स हैज़ अ राइट टू सेल, राइट टू गिफ्ट, राइट टू लीज हिज शेयर्स. ओके, लियन हमने पढ़ा था. ओके, शेयर होल्डर के पास क्या क्या राइट है? ही कैन सेल हीज शेयर्स, और उसको सेल नहीं करने बट सपोज उसको किसी को गिफ्ट करने हैं. शेयर इज़ ऑल्सो वेरी गुड गिफ्ट. नो, फाइनेंशियली आप किसी को हेल्प कर रहे हो. तो अगर इफ़ आई वॉन्ट टू गिफ्ट सच शेयर्स टू समबडी, आई कैन गिफ्ट द शेयर्स टू समबडी. हैज़ राइट टू लीज हीज शेयर्स. लीज मतलब एक वो एज अ सिक्योरिटी मोर्गेज के लिए भी दे सकता है. सपोज उसको कहीं से पैसे बोरो करने हैं और तो ये एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ही कैन गिव इट टू समबडी. ओके, ही इज़ पुटिंग हिज शेयर एज लीज ऑफ हिज लोन्स और बोरोइंग्स. तो ये भी एक राइट है बहुत अच्छा सा शेयर होल्डर के पास. फॉर दिस लॉर्ड ब्लैकबर्न सेड, ये नाम आ सकता है ब्लैकबर्न का. Okay, many objective to start joint stock company is to provide, next page पे आ जाओ. The main objective to start joint stock company is to provide easy transfer of the shares to their members. क्या मेन ऑब्जेक्टिव है जॉइंट स्टॉक कंपनीज का? सो दैट उनके जो शेयर्स है, उनकी जो ऑनरशिप है वो इजीली ट्रांसफ़र हो पाए एक मेंबर से दूसरे मेंबर के पास. ओके, और उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट भी ना आए. सो यू कैन जस्ट इन्वेस्ट योर अमाउंट वेन एवर यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. इफ यू डोंट हैव इनफ फंड्स टू इन्वेस्ट, you can just waive your funds and you just can take away your shares and you can just use your funds the way you wish to. Purchase and sales of shares is conducted in the share market. परचेज और सेल ऑफ द शेयर कहाँ होगा? कहीं पे भी कोई भी मार्केट में नहीं होगा, उसका स्पेशल शेयर मार्केट होता है, वहीं पे ही होगा. यू ऑल आर अवेयर ऑफ शेयर मार्केट, राइट? पेज नंबर 101 एवरीबडी. दिस इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, सो इट इज़ नोन एज बैरोमीटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है.
जिस हिसाब से आपका शेयर मार्केट चलता है ना, उस हिसाब से आपकी इकोनॉमी को जज किया जाता है। जैसे अगर अपने को फीवर होता है तो क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर पता चलता है कि कितना फीवर है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। सेम वे इफ़ यू वांट टू मेज़र योर इकोनॉमी, अगर आपको आपकी इकोनॉमी को मेज़र करना है कोई भी कंट्री की, तो उसका बैरोमीटर क्या होता है, इट्स योर शेयर्स। ओके, कंपनी के जो शेयर कैपिटल होती है वो उसका जो शेयर मार्केट के जो पॉइंट्स होते हैं वो उसके होते हैं बैरोमीटर, कि कितना आपकी कंपनी डेवलप हुई है। ओके, सो अभी के अगर टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे भी देखो तो चाइना हैज़ ब्रॉट अप विथ such viruses, and even when we were into so critical, पूरे लॉकडाउन लग गए थे हर जगह पे, तो उस टाइम पे भी चाइना की जो इकोनॉमी थी वो ग्रो करी थी। सो दैट ब्रॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन टू एवरीवन, दैट हाउ कम दे आर इन सच सिचुएशन व्हेन एवरीवन्स इकोनॉमी इज गेटिंग डाउन। और वो इकोनॉमी कैसे वो पता कर रहे थे, उनके शेयर मार्केट से, तो वो कैसे ग्रो करी है। सो दीज क्वेश्चंस इफ़ यूल नो अबाउट इट देन यूल कैन अंडरस्टैंड सच थिंग। बहुत बड़े बड़े से आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आ रहे थे। And even in this situation also nowadays, if you'll read the newspaper, you will get to know now that India is growing very fast, and its share market is getting increased day by day. All right, so that is somehow the growth of the country. Okay, so this is a source of capital, so it is known as the barometer of the development of the country, कि अपनी कंट्री का कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको पता चलेगा उसकी शेयर कैपिटल से। देन नंबर 1 इज, अभी उसके मेन इंपॉर्टेंस जो है, इट कुड बी आस्क्ड इन योर 2 और 3 मार्क्स में आ सकते हैं। 2 मार्क्स में आते तो 4 पॉइंट्स, 3 में आते तो 6। Number 1 is share transfer generates income for the government. Share transfer increase leads to increase in the government income because government has imposed tax on it. Okay, it generates income for government. क्यों? क्योंकि government उसके ऊपर tax impose करती है। If you sell your shares to somebody else, you need to pay certain amount of tax to the government. So it is good for government if you are transferring your share, because government gets the tax on such transfer. Shareholders get cash on sale of shares. Easily you can just get your cash. ओके, बहुत आसानी से अपने शेयर बेच सकते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विड कर सकते हैं बहुत इजीली। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन गेट योर शेयर्स कन्वर्टेड इनटू कैश। परचेजर ऑफ शेयर गेट्स राइट ऑफ ऑनरशिप, और जो परचेज करेगा उसको कंपनी का ऑनर बन जाएगा, सो वो ऑनरशिप के राइट्स एंजॉय करेगा। शेयर होल्डर इज एबल टू गेट बेनिफिट्स ऑफ मार्केट वेरिएशन। तो जैसे अभी ये बहुत बार होता है कि आपने कई बार ऐसा होता है कि शेयर्स खरीदते बहुत मार्केट जब बहुत डाउन होता है तब खरीदते हैं, and then when you sell it, okay, the difference is very huge sometimes, and sometimes in a positive way, sometimes in a negatively also difference बहुत ज़्यादा आ सकता है। so shareholder जो होते हैं वो डिविडेंड तो उनका सेकेंडरी प्रॉफिट होता है, जो मेन प्रॉफिट होता है ना वो उसके जो प्राइस होते हैं उसके फ्लक्चुएशंस ही के वजह से ही शेयर मार्केट में से लोग पैसे कमाते हैं कि शेयर कम भाव में लेंगे फिर ज़्यादा में बेचेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा में खरीद लेते हैं फिर वो शेयर के भाव बढ़ते ही नहीं हैं, तो इस तरीके से लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। बट इफ़ यू विल स्टडी द मार्केट वेल एंड देन यू इन्वेस्ट, देन यू विल डेफिनेटली गेट द प्रॉफिट्स। Number 5 is invested funds of inefficient units flow to efficient units. Okay, जो inefficient थे कि तुमको कोई उसमें से प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा था या तुमको उसमें से कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, then you think that अभी कोई मेरा इसमें ग्रो नहीं है, you just can sell it out. ओके, तो आपका अमाउंट जो होगा कभी ब्लॉक नहीं होगा, इट विल कीप्स ऑन मूविंग। Share market and capital market grow as a result of share transfer.
मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आता है ना, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स. इट्स क्रिएट्स व्हेन यू विश टू बाय द शेयर्स, मतलब आप उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हो. Okay, and when you wish to sell the share, which means you are creating the supply of the shares. And what share market is what is the result of such demand and supply. कितना shares बेचा जा रहा है, कितना shares लिया जा रहा है, तो उसकी वजह से उसकी जो पूरी वैल्यूज़ होती है ना, वो डिसाइड होती है. जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी ना, उसके भाव बढ़ते जाएंगे. जैसे उसकी सप्लाई बढ़ेगी, भाव घटेंगे. डिमांड मतलब क्या? टू परचेज द शेयर. मैं अभी मुझे ऐसा है कि मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने डिमांड क्रिएट करी. बट सेम यू आर थिंकिंग टू सेल द शेयर्स ऑफ रिलायंस, तो आपने क्या क्रिएट किया? यू क्रिएटेड द सप्लाई ऑफ द शेयर्स. आपने वो सप्लाई क्रिएट करी. तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी और उसके सामने सप्लाई कम होगी, तो मतलब शेयर की डिमांड ज़्यादा है, मतलब शेयर के भाव बढ़ेंगे. पर अगर ऐसा है कि शेयर लेने वाले कम है और बेचने वाला ज़्यादा है, तो फिर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिक शेयर के भाव गिरने लगेंगे. So that's how the share market works. Okay, so share market and capital market grow as a result of share transfer. पर अगर हम लोग शेयर ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे, कोई शेयर खरीदेगा ही नहीं और बेचेगा ही नहीं, तो फिर ये पॉसिबल है? नहीं है. So it is a result of share transfer that makes the capital and share market grow. Okay, then free share transfer leads to increased span and scope of development of the company. कंपनी कोई भी उसका चार्ज नहीं लेती है if you are selling or buying the shares. Okay, free share transfer, मतलब freely you can do it, leads to increased span and scope of development of the कंपनी. कि अगर बेचने और लेने वाले को ये सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे बाई करना है या सेल करना है, यू नो, आई हैव टू पे और नॉट. तो इसीलिए इट कैन इंक्रीज इट्स स्पेन, उसका टाइम पीरियड भी वुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन एनी अदर फैक्टर्स. Then provision of transfer is specified in articles of association. Again, it's internal matter. So articles of association में उसके related provisions दे देते हैं. Sometimes there may be restriction in especially in private companies, but right of shareholders cannot be taken away by imposing prohibition on it. But shareholders, अगर शेयर है उसके पास, शेयर होल्डर है वो, तो फिर आप उसके कोई भी राइट्स उससे ले सकते नहीं हो. ओके, ट्रांसफ़र की बात अलग है. ट्रांसफ़र की बात कंपनी डिपेंड करेगी हर एक कंपनी की. बट अगर आप शेयर होल्डर ऑलरेडी हो, तो आपको जो बेसिक राइट्स मिलने चाहिए वो तो मिलेंगे ही. अ मेंबर कैन when he wishes sell all or gift his shares to other. बाकी तो सब केसेस में प्राइवेट कंपनीज के अलावा बाकी सारी कंपनीज में मेंबर ऑफ द शेयर, ओके, मेंबर्स दैट इज द शेयर होल्डर कैन सेल और गिफ्ट हिज ऑल शेयर्स टू एनीवन इन द वर्ल्ड. ओके, किसी को भी आप बेच सकते हो या फिर आप उसको गिफ्ट कर सकते हो. दैट इज द राइट ऑफ अ शेयर होल्डर. Alright, so this is the importance of share transfer. Now we will be moving to next, that is provision regarding shares transfer. What things that we should keep in our mind when we think to transfer our share. Before learning this topic, it is essential to know that types of shares that can be held by shareholders. From the point of view of share transfer, there are two types: physical shares and demat shares. Okay, पहले तो शेयर्स के टाइप क्या है. ओके, यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी के बेस के ऊपर शेयर के टाइप्स तुम सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में. बट ट्रांसफरेबिलिटी के व्यू में, पॉइंट ऑफ व्यू में, कि शेयर्स के दो पार्ट्स हैं, एक फिजिकल शेयर्स और एक डीमेट शेयर. डीमेट शेयर मतलब जो ऑनलाइन हम लोग ट्रांजैक्ट करते हैं वो, और फिजिकल शेयर मतलब वो पेपर फॉर्म में जो आता है वो. लेट्स रीड इट अबाउट फिजिकल शेयर्स. In this format, share certificate with the shareholder is issued by the company. जिसके पास फिजिकल शेयर्स होते हैं उसके पास क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट होता है इन फिजिकल फॉर्म. ओके, पेपर फॉर्म में होता है. दिस शेयर सर्टिफिकेट हैज़ नेम ऑफ कंपनी
क्या क्या होता है उसके ऊपर, नेम ऑफ कंपनी होता है, शेयर होल्डर का नाम होता है, शेयर ओके, इट्स शेयर होल्डर्स नेम, शेयर सर्टिफिकेट नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी सील एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन इट। तो शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होता है, एक तो कंपनी का नाम लिखा होता है, शेयर होल्डर का नाम होगा, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर, फिर शेयर का नंबर और उसकी वैल्यू, कंपनी का जो कॉमन सील होता है वो कॉमन सील, और जो अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी नेसेसरी, वो सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। देयर आर possibility of its getting torn, stolen, getting destroyed in fire and being physically destroyed। पर अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स हैं तो ये पॉसिबल है कि आपके शेयर टोन यानी फट जाए या आपके शेयर सर्टिफिकेट चोरी हो सकता है, डिस्ट्रॉयड इन फायर आग में जल जाए, या कोई प्रॉब्लम में गुम हो जाते हैं या फट जाते हैं या जल जाते हैं, या और बीइंग फिजिकली डिस्ट्रॉय, या फट भी सकते हैं अपने हाथ से, या कुछ भी हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है फिजिकल शेयर्स की। हालांकि उसके रिलेटेड भी प्रोविजंस होते हैं कि अगर ऐसे केस में भी यू कैन गेट योर शेयर सर्टिफिकेट बैक, पर उसके लिए कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसको एप्लीकेशन करनी पड़ती है और बहुत प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, और आपको प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे आग लगी थी या फिर ऐसे फट गया है या चोरी हो गया, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हो। ओके, सो दिस वॉज अबाउट फिजिकल शेयर। देन इट कम्स टू डीमैट शेयर्स। डीमटेरियलाइजेशन शेयर्स आर नोन एज डीमैट शेयर्स, मतलब कि जिसको डीमैट फॉर्म में हमने डीमटेरियलाइज किया है, मतलब हमने उसको ई फॉर्म्स जैसे करते हैं, ई शेयर्स बना दिए हैं, लाइक उसका रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर डेटाबेस हमने कर दिया है, रादर देन गोइंग विथ फिजिकल फॉर्म। दिस टाइप ऑफ शेयर इज नॉट with shareholders physically, but it is in the demat account opened by the shareholders, as we have discussed it before also, that if you wish to save your money you need to have saving account in your bank. If you wish to buy shares you need to have a demat account in the depository banks, okay, in the depository participants. Okay, so this type of shares are physically not with shareholders, physically shareholders के पास नहीं रहते हैं, but उनके डीमेट अकाउंट में रहते हैं। You have already studied in class 11 regarding demat account, that we have already discussed also. This type of shares has no fear of getting lost, torn or being forged or being destroyed in fire। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है जब अपने पास डीमेट शेयर्स होते हैं, कोई फट नहीं सकते, वो चोरी नहीं हो सकते, ओके, तो आग में जल नहीं सकते। सो दिस आर बेनिफिट्स ऑफ डीमेट शेयर्स। द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र इज डिफरेंट फॉर फिजिकल शेयर्स एंड डीमेट शेयर्स। ऑफकोर्स दोनों के जो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर होगी वो अलग अलग होगी। A share transfer procedure for physical shares is as under: company may refuse to transfer shares if procedure is not followed। अगर आपने प्रोसीजर नहीं फॉलो की सही से तो कंपनी आपको रिफ्यूज़ कर देगी शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, सो सबसे पहली चीज़, टू ट्रांसफ़र द शेयर्स यू नीड टू फिल द शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म। ओके, ये हम लोग किसकी बात करें, हम लोग फिजिकल शेयर्स की बात करें। ओके, फिर डीमेट शेयर्स में अलग प्रोसीजर होगा, इस फिजिकल शेयर्स में अलग होगा। तो अभी हम लोग पहले करें फिजिकल शेयर्स की। टू ट्रांसफ़र द शेयर्स prescribed form has to be filled up properly. If you want to transfer, the prescribed form, that is share transfer form, has to be filled properly. This form contains complete details of seller की complete detail होनी चाहिए, and the purchaser। क्या डिटेल्स, लाइक उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सिग्नेचर, दोनों की, बायर की भी और सेलर की भी। बायर की इसलिए ताकि नए शेयर होल्डर्स का नेम और सब रिकॉर्ड हो पाए, और
सेलर की इसलिए ताकि वो उसका रिमूव करने में पता चले कि इसी ने किया ना, कहीं किसी और ने तो ट्रांसफ़र नहीं ले लिया है, या फिर कोई और गलत तरीके से तो नहीं वो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है. सो टू गेट द अश्योरिटी कि हाँ ये एक्चुअली शेयर होल्डर है ना हमारा, कि ऐसे ही फिर गफलेबाजी हो रही है, तो वो भी चेक करनी पड़ती है. तो दैट इज़ बीइंग डन बाय मेकिंग देम फिल द फॉर्म प्रॉपरली. सच फॉर्म्स आर यूजुअली अवेलेबल इन कंपनीज रजिस्टर्स ऑफिस. ओके, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है. ऑथोराइज्ड शेयर ब्रोकर के पास होता है एंड शेयर मार्केट में होता है. ये 3 जगह पे कंपनी की ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में, ऑथोराइज्ड शेयर ब्रोकर के पास एंड शेयर मार्केट में. अब ये भी पूछा जा सकता है फ्रॉम वेयर वुड वी हैव द शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म. सो यू कैन हैव इट फ्रॉम कंपनीज रजिस्टर्स ऑफिस, ऑथोराइज्ड शेयर ब्रोकर एंड शेयर मार्केट. ये 3 प्लेसेस. ओके, सो पहली चीज़ आपको करनी है शेयर ट्रांसफ़र. फिर शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर इज़ टू बी एनक्लोज्ड अलॉन्ग विथ शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म. शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म के साथ ये भी अपने को अटैच करके दे देना पड़ेगा. Unpaid calls, there should be no unpaid calls on share that are to be transferred. If you want to transfer your share, it should be fully paid. Okay, unpaid होने चाहिए नहीं. आपके जो शेयर्स होने चाहिए वो fully paid होने चाहिए, तो ही आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो. Number 4 is objection application. There should be no objection by anybody for restricting transfer of shares. If any objection is raised by anybody, share transfer will not be granted by the company. कोई भी इसके खिलाफ एक्शन जो रिस्ट्रिक्ट करे शेयर ट्रांसफ़र को होना चाहिए नहीं. अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो आपका ट्रांसफ़र फिर खतरे में हो जाएगा. यू मे बी स्टॉप्ड. बट हाँ, ऐसा नहीं कि चलो कोई भी आके ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा तो नहीं चलेगा. जैसे अभी मेरे को सिर्फ ऐसे ही किसी से प्रॉब्लम है और मैं ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्शन फिर कंसिडर नहीं करा जाएगा. ओके, ऑब्जेक्शन भी हो तो वो वैलिड होना चाहिए. ऐसे कोई भी कुछ भी बोलेगा तो नहीं होता है. लीगली ये मैटर होती है, तो दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ऑब्जेक्शंस आर बीइंग रेज्ड. ओके, सो टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 102. सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस. ओके, कि अगर आपको शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में आपके शेयर्स है कि नहीं. ओके, सो इफ़ अ शेयर ट्रांसफ़र, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस मतलब इफ़ अ शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म विच इज़ ड्यूली फिल्ड एंड साइंड इज़ लॉस्ट, then application should be made duly signed by both the parties to the company. They have to make the satisfactory clarification to the directors of the company. If a share transfer form which was duly filled and signed also is being lost, कुछ केयरलेस लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऐसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स भी लॉस्ट हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं. ओके, देन एप्लीकेशन शुड बी मेड. तो फिर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी ड्यूली साइन बाय बोथ द पार्टीज. ऐसा नहीं कि एक पार्टी को ही साइन करना है, दोनों को करना है, क्योंकि इसमें केयरलेसनेस दोनों की है. ओके, एंड सेकेंडली कि दोनों को देना पड़ेगा प्रूफ कि हाँ भाई दोनों सच्चे हो ना. कैसे नहीं कि एक को पता ही नहीं है कि शेयर ने फॉर्म गुम कर दिया है दूसरे बंदे ने और दूसरा एप्लीकेशन कर रहा है. ओके, सो ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लियर. सो दे हैव टू मेक अ सेटिस्फैक्ट्री क्लैरिफिकेशन. उनको सेटिस्फैक्ट्री क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, सही रीज़न देना पड़ेगा कि कैसे आपके शेयर के ये फॉर्म गुम हो गए. देन so number 6 is lien rights. If the company has lien right on transferee shares, मतलब कंपनी ने अगर लियन में रखे हैं ट्रांसफरी शेयर्स को, मतलब जो शेयर ट्रांसफ़र करने का आपका विल है, राइट, कैन अप्रूव्ड फॉर ट्रांसफ़र टू कलेक्ट इट्स डेट. तो सपोज अगर आपने कहीं पे लियन रखे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू पे दैट अमाउंट बैक, then and you have created a lien on your shares, so company has a right, or even the debtor has a right that they can sell your share and the shares can be transferred to the
transferee, the one who has kept your shares as a lien, उनके पास वो शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं. So that is also for physical transfer. Number 7 is stamp duty. Proper stamp duty should be affixed on share transfer form as per the market value of the share. जिस हिसाब से मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लीगल चार्जेस आपको देने पड़ते हैं. इफ़ द स्टैम्प ड्यूटी affixed is as less value, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र द शेयर्स. आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है सही से, जितनी उसमें होती है उतनी नहीं भरी है, तो डायरेक्टर्स वुड आस्क यू दैट डायरेक्टर्स में रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र योर शेयर्स. Number 8 is share certificate to BU shareholders. On approval of share transfer, the company sends charged share certificate to the new shareholder within 1 month. It's not BU, it's new. Okay. So on approval of once your shares are approved, okay, the company sends चेंज्ड शेयर सर्टिफिकेट. जैसे अगर आप मेरे पास शेयर थे, अभी मैं उसको सेल आउट कर देती हूँ, तो आई नीड टू सरेंडर माई शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी. सेम वे, वंस आई सरेंडर माई शेयर सर्टिफिकेट्स, द कंपनी विल इशू द न्यू सर्टिफिकेट्स टू द न्यू शेयर होल्डर. जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है उसको कंपनी न्यू शेयर सर्टिफिकेट्स दे देगी. ओके, सो शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर्स once your transfer is being approved. Okay, rejection of share transfer. Share transfer can be rejected in case registration or registrar of company has put a restriction on, or court of law has given a verdict of no transfer of those shares. अगर कुछ सस्पिशियस चीज़ है या कुछ प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हुआ है, तो शायद आपको कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया है या कुछ अनलॉफुल चीज़ें आपके ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करी हुई है, तो इन सच केस ऑल्सो योर शेयर ट्रांसफ़र विल बी रिजेक्टेड. ओके. नंबर 10 इज प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. Alright, so for the share transfer, provision of Companies Act as well as provision of Articles of Association should be followed. Companies Act और Articles of Association दोनों के जो भी provisions होंगे that should be followed. If they are not followed, then share transfer is not granted. तो भी आपको share transfer नहीं होंगे अगर आप Companies Law या Articles of Association के provisions provide करते नहीं हो. Okay, register of members. Original shareholders name is continued up to the completion of share transfer procedure. जब तक complete नहीं होती procedure तब तक original shareholder का नाम रहेगा. Once the procedure is getting over, once it is approved, afterwards the new shareholder's name will be added in the register of member. Right of dividend. In case transmission is not completed, expired member or insolvent member is entitled to get dividend. Okay, in case of transmission, okay, जब ट्रांसमिशन की बात आती है कि जब कंपल्सरीली आपको शेयर्स ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, राइट, तो इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, okay, in case transmission is not completed, expired member or insolvent member is entitled to get dividend. Okay, suppose कि किसी की डेथ हो गई है, okay, या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, अभी जिस पीरियड में वो उसकी डेथ हुई या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, सपोज मार्च में के टाइम पे उनकी डेथ हुई है या फिर मार्च के मंथ में वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए हैं, तो तुरंत तो ट्रांसमिशन का प्रोसीजर नहीं हुआ होगा, इट विल टेक टाइम. तो तब तक अभी वो शेयर्स जो डेड पर्सन है या इंसॉल्वेंट पर्सन है उसी के नाम पे है, तो दैट डेड पर्सन और दैट इंसॉल्वेंट पर्सन स्टिल हैज़ अ राइट टू रिसीव द डिविडेंड. फिर जब उसका ट्रांसमिशन होता है तो वो जो नॉमिनी होता है, उसका जो वारिसदार होता है, उसको अलॉन्ग विथ शेयर्स उसको डिविडेंड भी फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है. बट इवन द ट्रांसमिशन इज़ नॉट डन, कंप्लीट नहीं भी हुआ है, तो भी उसके पास वो राइट्स तो रहते ही है.
इन केस सिंगल पर्सन कंपनी, देखो अभी 2013 के बाद सिंगल पर्सन कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ है कि जहाँ पे एक ही बंदा भी अपने हिसाब से कंपनी स्टार्ट कर सकता है। सो ऑन द डेथ ऑफ सोल मेंबर, तो उसमें एक ही मेंबर है जो कि, तो ऑन द डेथ ऑफ सोल मेंबर द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच मेंबर शेल बी अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी as having title to all the shares and share of the members। तो जो नॉमिनी होगा उसके पास सारे शेयर और शेयर के राइट्स होंगे। ओके, इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी, ओके, जिसमें एक ही बंदा कंपनी पूरी चला रहा है, तो उसका जो नॉमिनेशन उसको क्रिएट करना होता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता हूँ, या फिर मेरे को इफ़ आई एम बीइंग डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, और इफ़ आई एम डाइंग, और इफ़ आई बिकम insane, it could be happening, right? Or I am unable to continue with whatsoever duties I have. So in that case, they keep the nomination, and that nominated person is having all such rights. Nominee should be informed of such an event by board of director of the company। board of directors को nominee को ये चीज़ें फिर inform करनी रहेगी कि this is the case that has happened। such nominee shall be entitled to the same dividend and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable। तो जो उसको मिलना है, डिविडेंड है, उसके राइट्स है, वोटिंग राइट है, जो भी है, तो उसके लिए वो एंटाइटल है, प्लस जो उसको लाइबिलिटीज़ निभानी है उसके लिए भी वो लाइबल है, दैट ही हैज़ राइट्स एंड ही हैज़ लाइबिलिटीज़ ऑल्सो। नॉमिनीज़ को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलते हैं, बट दे गेट सच लाइबिलिटीज़ ऑल्सो। On becoming member, such nominee can nominate any other person subjected to written. Just a minute. On becoming member, such nominee can nominate any other person subjected to written consent by that person। Suppose कि एक person है, सिंगल हैंडेड कंपनी चला रहा है, राइट, एंड ही हैज़ केप्ट his wife as a nominee। Okay, now that nominee like his wife is not willing to continue with such rights, and she is not interested in such things, she don't find her fit in this, or whatsoever reasons are, and she's not ready for getting such liabilities and getting such rights। तो वो चाहती है कि उनके बच्चे, चलो किसी को मैं नॉमिनेट करूँ और वो ये सब कंटिन्यू करे। तो दैट लेडी, दैट वाइफ, दैट नॉमिनी हैज़ सच राइट कि वो अपने जो भी उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ है वो ट्रांसफ़र कर सकती है, बट सब्जेक्टेड दैट रिटन कंसेंट उसकी लेनी पड़ेगी कि जिसको वो सारे अपने राइट्स और लाइबिलिटीज़ दे रही है। सपोज उसके बेटे को या उसकी बेटी को या उसके कज़न, किसी को भी अगर वो राइट्स दे रही है, तो वो बंदे को भी अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी कि भाई हाँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी राइट्स मुझे मिल रहे हैं। ओके, दीज आर द थिंग्स that we have shown। Okay, these are the procedure of physical shares is what is being explained here। Okay, so such things are to be done। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है 3 मार्क में या 4 मार्क में। Okay, so make sure that you revise it। Procedure for physical share transfer, that we will be doing it in the next class। Okay, and up till this we are keeping, and in your homework you are supposed to solve the exercise and related questions, you can just finish it out। Alright, so here we end। Thank you for watching everyone, have a nice day ahead।